स्टैटिक इक्विलिब्रियम दो वर्ड्स से बना है. इट कंसिस्ट टू वर्ड्स इक्वी एंड लिब्रा. बोथ आर लैटिन वर्ड्स. इक्वी मीन्स equal and libra means balance or weighing machine. When the both the vowel of weight does not change position with respect to the time, ठीक है, then we use the word equilibra और इक्विलिब्रियम. इन सिंपल वर्ड्स, जब आपके तराजू के दोनों बावल्स टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, या हम ये कह सकते हैं तराजू के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है टाइम के साथ, देन वी यूज द वर्ड इक्विलिब्रियम. इन सिंपल वर्ड, जब कोई प्रॉपर्टीज या कोई भी थिंग टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, देन वी यूज द वर्ड इक्विलिब्रियम. Technically, we can say that any property of a system, let the any property of system is P and it is not changing with respect to the time, ठीक है, या during the time, then we use the word then we use the word equilibrium. It means derivative of any property P with respect to the time dt is equal to 0, then we use the word equilibrium. For example, the temperature, T is a temperature and is not changing with respect to the time, then it means it is thermal equilibrium. Similarly, the C are the amount of reactant and the product occur. And if this is not changing with respect to the time, dc upon dt, derivative of reactant and product, is not changing with respect to time, then we use the word chemical equilibrium. तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करते हैं. यहाँ पर टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है इन थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर. केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, देन वी यूज द वर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. अब तक हमें इक्विलिब्रियम वर्ड समझ में आ गया. इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मीनिंग है. ठीक है, इक्विलिब्रियम मीनिंग जब कोई प्रॉपर्टी, टारगेटेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमें डिसाइड करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी टाइम के साथ सिस्टम की चेंज नहीं हो रही है. यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ, तो थर्मल इक्विलिब्रियम बोल दिया. यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दिया. सिमिलरली वी कैन आल्सो डिफाइन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ को रिकॉल करना होगा. A body remain in the state of rest or uniform motion. These two words is very important. State of rest or uniform motion. In a straight line unless or until external force act on it. The velocity contain the two components, speed and the direction. So we will try to explain the word state of rest and state of यूनिफॉर्म मोशन. यदि हमें ये समझ में आ जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो वी कैन ईजिली डिफाइन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं. वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट है, एक स्पीड है, एक डायरेक्शन है. In both the case, the speed is not going to change. In the case first, the speed is zero. It means velocity is not changing with respect to the time. Derivative is equal to zero. In this, also the speed is constant and direction is constant. It means velocity is again not going to change. It means the derivative of velocity with respect to the time dt is equal to 0. That is the reason we called as a static equilibrium. In static equilibrium, we target the velocity of a body. If the velocity of a body is not changed with respect to the time, then we use the word static equilibrium. I repeat it, the velocity is targeted property in a static equilibrium. If the velocity of a body is not changing with respect to the time, then we are going to use static equilibrium. And this is happen when the all the force apply on the body is equal to 0 on the body. This is a body. If all the forces F1, F2 and F3, जितने भी फोर्सेस अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई किए हैं, यदि उनका अलजेब्रिक समेशन कर दिया जाए, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 0,
then this is will be happen. How we know it? By this is known by using the Newton first law. So we come again on the Newton first law. So Newton first law say that the body in state of rest or uniform motion, it means the dv upon dt. in mathematically हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dv upon dt लिख सकते हैं. और this is happen when there is no external force act on it. या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हो नहीं बॉडी के ऊपर, या तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो उनका अलजेब्रिक समेशन कितना होना चाहिए? ठीक है, वो सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो हमने जो लिखा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्चुअली दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ. द टारगेट प्रॉपर्टी इज वेलोसिटी, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, और दिस इज हैपन व्हेन द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. या तो फोर्स अप्लाई होने ही नहीं चाहिए, और यदि फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उनका सब अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस the rate of change of velocity with respect to the time is equal to 0. v is the velocity. ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, then we use the word static equilibrium in the engineering mechanics. In dynamic equilibrium, we target the acceleration of the body. When the acceleration a is not going to change with respect to the time, then we use the word dynamic equilibrium. Means rate of change of acceleration with respect to time is constant, equal to 0. ठीक है, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हमारा कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है. देन वी यूज द वर्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, हाउ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल? we know the from the Newton second law, F is equal to mass into acceleration. ठीक है, if acceleration is constant, ठीक है, और mass is also constant, जनरली जो bodies होती है motions में का mass change नहीं होता, mass constant रहता है, और acceleration हमने क्या मान लिया? constant मान लिया. if the both the term is constant, then the force is also constant. तो force भी क्या हो जाएगा हमारा? constant term हो जाएगी. ठीक है, it means in the dynamic equilibrium the value of f is not equal to 0. जब तक f की वैल्यू 0 है, it means we are in static equilibrium. हम किसके अंदर हैं? स्टैटिक. f is equal to 0. summation of all the force acting equal to 0. algebraic summation of all the force acting on the body is equal to 0. it means we are in static equilibrium. लेकिन जैसे ही हमारा होता है कि force is not equal to 0, then we enter into the dynamic equilibrium. ठीक है, फोर्स F इज इक्वल टू, इट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ. एफ फोर्स F इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है कि F इज कांस्टेंट. F की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. वो 1 2 3 5 कुछ भी हो सकती है आपकी, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज है. यदि F इज ए कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन का जो डेरिवेटिव है या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है विद टाइम इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज नोन एज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम. और इसी को हम क्या बोल देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में किसको टारगेट करते हैं? हम वेलोसिटी को टारगेट करते हैं. और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को किसको टारगेट करते हैं? हम एक्सेलरेशन को टारगेट करते हैं. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या चेंज नहीं हो रहा आपका? ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है.